بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس بولی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ ان کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر فوزیہ کے پاس لے گئے جنہوں نے میرے ٹیسٹ کیے۔ پھر بولی، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کی پیدائشی نقص کی وجہ سے، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچے پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میرے اندر تو کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہاں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے نعمان سے محبت میں شادی کی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹا کیوں روتی ہو؟ میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت سخت عورت تھیں، مگر آج ان کا رویہ مردانہ تھا۔ میں کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں روبینہ بیگم کے پاس لے چلوں۔ جانتی ہو روبینہ کے پاس جتنے بھی بانجھ لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ روبینہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات مانو تو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس ڈاکٹرنی کا خیال ہوگا کہ میں تمہارا مہنگا علاج کرواؤں، تبھی ایسے باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے روبینہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کی دوائی کھا کر تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ یاسمین کو بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھی۔ روبینہ بیگم کی دی ہوئی دوائی کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ روبینہ بیگم کے پاس چلنا ہے۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم دونوں لوگ روبینہ کے آستانے نما مکان پر جا پہنچے۔ روبینہ بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی روبینہ بیگم کی دوائی ہوئی سے ٹھیک ہوئی ہیں۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے تو میرا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال روبینہ بیگم کے پاس گئی، دم درود کیا اور پھر دوا دے دی۔ دوا دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی کہ میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس سے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہیں، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹیوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے نقص کو برداشت نہیں کرتی۔ جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لیے پھر رہی تھی۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھی۔ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ گولیاں کھا لینا، اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا۔ جانتی ہونا دوا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔ سمجھ گئی؟ میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو یہ ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ضرور دیکھے تھے۔ اس رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے تو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری، اب بس انتظار کرتی رہی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب صبح اٹھتی تو میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی۔ رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا،
मगर गोली गुम हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाया हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रुबीना बेगम कौन सी दूर हैं, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, फजर के वक्त ही इनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, सुबह हुई सवेरे इनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर भी ज़ाया नहीं जाएगा। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हो गई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये न समझें कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रहीं। मैं आंखें खोल कर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती रही कि कहीं न शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों को राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा ना गया। गरम गरम राख मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैंने एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था। इसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ हैं। मुझे उठकर चीखता चलाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे जैसे हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाऊं। मुझे अजीब महसूस हो रहा था। इनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर के अकबी दरवाजे की तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस कर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि वो मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती रही और चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़ था। मैं अपने शौहर नुमान को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल न किया, मुझे पूछने तक न आया। मैं इसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर इसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल है और ये कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं इसी इंतज़ार में थी। तकरीबन शाम 4 बजे नुमान आया और कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं इसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीब व गरीब करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारा माँ बनने का इसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर के फौजिया के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बादपन की गोलियां खाने को क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। नुमान ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था मैं इनकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल में खौफ सवार था। मैं इनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए नुमान, मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। नुमान ने मुझे राजदाना अंदाज में कहा, मेरी माँ को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें इनसे दम करवाने आती हैं और सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत इनके दर से खाली ना जाए। जैसे रुबीना बेगम है ना, वो वैसा बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल की करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ, अगर शादी के बाद इन्हें तो मैं इस पर अमल करने की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं इनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो इनका हुक्म मानना है। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो इन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये कहानी सुनकर मैं चिल्लाई, तुम पागल तो नहीं हो गए नुमान? मर्द बनो। तुम्हारी अकल को क्या हो गया कि अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अमामल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जाहिलियत में पड़ी हैं। इनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपनी ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी
तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? तो तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नुमान ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा, अल्लाह ने एक दिया है तो और भी देगा, सब्र करो, वैसे भी तुम्हारा अभी पहला महीना है, कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया। नुमान, मैं कोई बात नहीं जानती, बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। नुमान ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफाई की हरकत पर मैं हैरान रह गई, सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद वो दोबारा आया तो मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं, इसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। नुमान ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत की सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। नहीं नुमान, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूं इसे ये अमल नहीं करने दूंगी। नुमान पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे इसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसके चेहरे पर निदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो इसी वक्त कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास की चीखने की आवाज़ें आईं, फिर वो भागता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। पर नुमान ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जनून तारी हो गया है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। नुमान की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ फरीद और इसकी बीवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने पहले से बता दिया कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान नुमान ने मेरी खबर तक न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी, लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। फिर एक दिन आसिया ने आकर इतला दी कि मेरे शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है, वो इससे अपने दुख सुख कहती है, इसे अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। मेहमान आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लाकर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। नुमान तकरीबन रोने को आए थे। नुमान, क्या हुआ, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि अम्मा को इनके किए की सज़ा मिल गई। इनके साथ जो हादसा हुआ इससे इनके हवास उड़ गए, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीब व गरीब बातें करती हैं। लोग इन्हें देख देख कर हंसते हैं और अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। नुमान की बात ने मुझे परेशान कर दिया। शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को मुआफ़ कर दिया। बेशक मुआफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने इनकी भरपूर खिदमत की। मुझसे बार बार मुआफ़िया मांगती हैं, मगर उन्हें न जाने किस किस का दिल दुखाया है, जिस वजह से इनकी मौत इतनी तकलीफदा हुई। इनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी हुई थी। यह हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई ऐसा अमल करूंगी चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं भी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी।